Dear student friend follower, we start with the name of Almighty God, who is most beneficent, the most merciful. One of our student he raised a question some days back. He asked, "Sir, what is? Would you tell me the answer of this question? Write naturalism in cherry orchard. Write a detailed note on naturalism in cherry orchard." चेरी ऑर्चर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि नेचुरलिज्म के एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी असाइनमेंट एक मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, आपने उसको देखना है, आपको टीच भी कर देता हूँ। अब एट द मोमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था कि ये कुछ आए हुए हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इफ़ यू आर, ये देखें ज़रा, इफ़ यू आर स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, ये एक्ट 3 है और बात कर रहा है ट्रॉफी मॉव अन्या से बात कर रहा है और दोनों डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि ट्रॉफी मॉव के बारे में मैंने बताया था कि ट्रॉफी मॉव का आइडिया जो है वो पॉलिटिकल आइडिया यानी एक तो वो डार्विन थ्योरी जैसे वो डेवलपमेंट और चेंजिंग का कायल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज एंड ही इज़ फाउंड ऑफ द डार्विनियन थ्योरी and through this character Anton Chekhov he speaks through this question. He says that everything is developed with the passage of times and it gets new form. So like the Darwin theory say that the man he is the progress of the single organisms and all the things they are evolved from the same organisms like different animals, different living beings. So these all living being things, these are evolved from the same organisms according to the Darwin. Same over here, he says that everything is developed with the passage of time. If you will looking and thinking in a nostalgic life, you will not progress. So over here he is saying to the Anya that our forefathers, talk about the forefathers, they've been governing like that, your forefathers, they've been governing like that, and there was some serf, they were serving them. And when we study this play, we come to know that there was Alexander II. When Alexander II he comes in, he get his reign, and under his reign he give liberation to the serf. There were many serf. They were serf mean they were worker and they were serving people from generation to generation. They were the bonded laborers and they were working for quite long times. They've been serving, they were generation to generation, they keep on serving the certain tribe, certain people, certain duke, certain lord. And now after coming the Alexander II, he has freed and he has liberated all these serfs. No, these serfs, they are free enough, they are doing their business like that. The Lopakins, he was a serf, and now this serf is a successful tradesman and he is buying land, he was purchasing even the aristocratic like Labov and a kind of Ranovsky like ladies, he is buying their land. And here he is reinforcing on his point that there are changes. Changes are part of life. If we keep on thinking about the past, we can't make progress. So he say, if you are to start living in the present, isn't it abundantly clear that we कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? If we are to start living in the present, isn't it abundantly clear that we first got to redeem our past and make a clear break with it? यानी हमारा एक पास्ट था और हमने उसके साथ एक क्लियर ब्रेक किया है. यानी before that we been governing and there were serf, there were bonded people, they were all serving the certain authority, but with the passage of time all have broken, authority have broken, new changes have been reformed and new kind of people have come forward, new kind of system have been introduced. ये वो सिस्टम है राउंड अबाउट 19th सेंचुरी में कि जब रशिया के बहुत सारे कंट्री के साथ क्या हुए, तल्लुकात बने, रिलेशन बने,
डेवलपमेंट हुई, प्रोग्रेस हुई, रशिया जो है वो अपनी एक आइडेंटिफिकेशन रखने लगा। और हम देखते हैं कि इस सेंचुरी के अंदर जिसकी ये सेटिंग दिखाई गई है, जिस सेंचुरी की, एंटन चेखव ने बताया है कि किस तरह से वो यानी जो लेडी लबोव है, जो रेनफ्स्काई है, वो किस तरह से जाती है और किस तरह से वो वापस आ रही है फ्रांस के अंदर। इट मीन दैट इस सेंचुरी के अंदर रशिया ने तरक्की की, रशिया ने प्रोग्रेस की, और ह्यूमन प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुई, लिबरेशन आई, फ्रीडम आई, आज़ादी आई, प्रोग्रेस आई, डेवलपमेंट आई, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। और रशिया ने डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे ताल्लुकात बना रखे थे कि उनके जो इनहेबिटेंट्स थे रशिया के, वो उधर जाते और आते और बड़े पूरी दुनिया में वो ट्रैवल कर रहे थे। तो ये उस सेंचुरी की बात हो रही है, और उसमें वो कह रहा है कि एंड वी कैन ओनली रिडीम इट बाय सफरिंग एंड गेटिंग डाउन टू द रियल वर्क फॉर द चेंज। और क्या कहता है कि कहता है ये जितनी भी सफरिंग है, जितनी भी चेंजिंग है, ये आई है, और ये हम किसकी बेस पे हासिल करते हैं? लॉट ऑफ सफरिंग की बेस पे हम बहुत सारी चेंजिंग जो है वो हासिल करते हैं। वी गेट चेंजिंग बाय सफरिंग अ लॉट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। जब एक फेज से दूसरे फेज तक आते हैं तो बहुत सारी क्या करते हैं, एंड वी कैन ओनली रिडीम इट बाय सफरिंग एंड गेटिंग डाउन टू रियल वर्क फॉर द चेंज। और ये चेंज जो है कहता है कि हम रियल चेंज जो है हासिल करते हैं, यानी ये सारी चेंजेस जो हैं हमने कैसे हासिल किए हैं, एक सर्टन जो है हमने ट्रैवल किया है फ्रॉम दिस टू दैट। इफ़ वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द बैक and always thinking about the past, we cannot make progress. We have to live in the present, and this is the feature of the naturalism, this is the feature of the realism, this is the feature of the naturalistic movement. नेचुरलिज्म की ये एक फीचर ये भी है कि वो प्रेजेंट के बारे में सोचते थे, वो रियलिस्टिक थे, वो साइंटिफिक थे, वो डार्विनियन थ्योरी को फॉलो करते थे, और वो साइंटिफिक थे, प्रोग्रेसिव थे, ऑब्जेक्टिव थे, और लिव विद द नेचर। वो नेचुरल जैसे फ्लो है उसके साथ रहते थे, एंड वॉट एवर इन द लाइफ दे शो द नेचर। तो ये जो है नेचुरलिज्म की मोमेंट है। अभी मैं आपके साथ असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, उसमें भी हम ये चीज़ें फिर फाइंड करेंगे इसके अंदर से। लाबोग बात कर रहा है थिया के साथ, एक्ट 3 है, और ये डिस्कशन चल रही है किसकी? थिया की, हेडा की, लाबोग ने लाबोग को इनवाइट किया है। किसने? लाबोग को इनवाइट किया गया। टेस्मैन और डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने एक पार्टी अरेंज की है, और लाबोग जो है उस पार्टी पे गया है। लाबोग वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट को भी मिला है। लाबोग वहाँ पे शराब भी लाबोग ने पी है। लाबोग काफ़ी देर के बाद अपने दोस्तों में वापस आया है। उसी दोस्तों में उस माहौल को देख के फिर से इंस्पायर हुआ, और उसने शराब बहुत ज़्यादा पी ली, और उस शराब में वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो वहाँ ही भूल आया, और टेस्मैन उसको उठा के ले आया। अब ये सारे मामला हो चुके हैं, वापस आया है। टेस्मैन जो है वो बड़ा परेशान है। टेस्मैन डिस्कस कर रहा है, वो उसके साथ डिस्कस कर रही है थिया कि क्या किया है तुमने लाबोग, तुमने क्या किया है उस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। तो लाबोग उसे बताता है, आई हैव टोर्न माई ओन लाइफ टू पीसेज, सो आई माइट एज विल टीयर माई लाइफ्स वर्क एज वेल। मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद ही तबाह बर्बाद कर दिया है, और कहता है सो आई माइट वेल टीयर माई लाइफ वर्क एज वेल। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया या बिखेर दिया, पीसेस में बिखर गई है मेरी ज़िंदगी। इसी तरह कहता है कि मैंने अपने पीसेस को, अपने मैन्युस्क्रिप्ट को भी कहता है फाड़ दिया है। अब वो क्या बहाना बना रहा है, किस तरह गुम तो कर बैठा उसको। फिर वो कहता है मिसेज एल्फ्रेड कहती है, मिसेज एल्फ्रेड एंड यू डिड इट द लास्ट नाइट, यानी जो तुमने फाड़ा है अपना मैन्युस्क्रिप्ट, जो ज़ाया कर दिया है, ये तुमने लास्ट नाइट जिस रात तुम शराब पीते रहे हो उस रात तुमने ये किया। लाबोग, यस आई टेल यू, मैं यकीनन कहता है कि तुम्हें बताना चाहता हूँ, इनटू 1000 पीसेस, मैंने उसको हजारों टुकड़ों में फाड़ दिया है, एंड स्कैटर्ड देम आउट इन द फोर्ड, और मैंने उसको कहता है एक समंदर में बहा दिया, अ लॉन्ग वे आउट, बहुत कहता है दूर तक, एंड लास्ट एट लीस्ट द वाटर क्लीन एंड साल्ट आउट देयर, और वहाँ पे कहता है वो समंदर में मिल जाएगा, और उसमें साल्ट आउट देयर, उसमें रिजॉल्व हो जाएगा। दे विल ड्रिफ्ट विद द करंट एंड द विंड, वो हवा और इसके मद्द जजर के साथ जो उसका पानी है उसके साथ चलेगा, बहेगा, एंड आफ्टर द वाइल दे विल सिंक, और फिर वहाँ पे डूब जाएगा, डीपर एंड डीपर, नीचे और नीचे कहता है गहराई में, लाइक इट विल, और कहता है इसी तरह।
अब यहाँ पे वो बता रहा है डिस्कशन किसकी हो रही है, लवबॉग बात कर रहा है थिया के साथ, हेडा गैबलर सुन रही है, हेडा गैबलर के साथ वो पहुंच गया है, टेस्मैन ने वो उठाया था, टेस्मैन ने आके हेडा को दिया, अब वो घर में है और ये लवबॉग जो है वो आया है, परेशान है, थिया जो है वो भी परेशान है, उनकी डिस्कशन हो रही है, ये तुमने सारा लास्ट नाइट किया है, यस मैंने लास्ट नाइट किया है, उसको फाड़ दिया है, उसको रिवर में बहा दिया है ताकि वो वहाँ मिले नहीं और नीचे वो मिल जाए, उसके साथ डिजॉल्व हो जाए। तो वहाँ पे जो हेडा गैबलर है वो इसको सुन रही है, हेडा गैबलर के पास वो पहले से मौजूद है, बट शी इज़ नॉट टेलिंग, शी इज़ जस्ट प्लेइंग विद देम, वो उनके साथ खेल रही है। अच्छा ये तो हो गए ये दूसरा। तीसरा देखें, देयर मैंस ऑल ओवर फॉर यू, ये एक्ट 1 से दिया गया। व्लादिमीर और गोगो यानी डीडी और गोगो जो हैं आपस में बात कर रहे हैं। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, जब मैं ये पढ़ा रहा था ये पहले मैंने बताया था, एस्ट्रेगन के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, विटी पर्सन है। एस्ट्रेगन जिसको डीडी कहते हैं। गोगो जो है, जो दूसरी साइड पे है, व्लादिमीर, वो थोड़ा सा मतलब जो दोनों इन बातें तो हिट ही करते हैं क्योंकि ये बोल तो पीछे इनके सैमुअल बेकेट ही रहा है, लेकिन इनमें जो है गोगो जो है, डीडी जो है वो बात थोड़ी सी ज़्यादा करता है। व्लादिमीर जो है वो ज़्यादा, यानी व्लादिमीर को दूसरा नाम उसका क्या है, डीडी, और गोगो को क्या कहते हैं, एस्ट्रेगन। एस्ट्रेगन जो है वो थोड़ा सा सिली पर्सन है, जबकि दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि जो दूसरा बंदा है डीडी जो है, डीडी यानी उसका निक, व्लादिमीर का जो निक नेम है वो डीडी है और गोगो का एस्ट्रेगन है। एस्ट्रेगन कभी जूता उतार देता है, कभी पहन लेता है, कभी कैप उतार देता है, पहन लेता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ एक तो कन्वर्सेशन एक्सचेंज करते हैं, लड़ते हैं, गेम खेलते हैं, कभी वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। द मैन्स सॉलिट्यूडनेस, this play show the absurdity, meaningless and solitudeness of the human being. This play in fact portrays the meaning that this world is a meaningless, since we are wandering over here and there is no definite meaning, we have to search out meaning ourselves. तो ये जो है मीनिंग सर्च करते फिर रहे हैं कि दुनिया किस पर्पस के लिए है, यहाँ पे हम वेट करें आएँ और खाए पिए और मर जाएं, या यहाँ पे हमने खुद मीनिंग बनाने हैं या पहले से बने हैं। दिस प्ले शो द अब्सर्डिटी, मीनिंगलेस, सिंस लाइक दिस सैमुअल बेकेट लाइक प्ले, एल्बर्ट कैमूस एंड जेन पॉल सर्टर्स, दे आर द फॉलोअर ऑफ द एग्जिस्टेंशियलिस्ट philosophy, and like these existentialists I have told you earlier, these kind of philosopher and these kind of dramatists, especially absurd movement like these play, right, they reject the existence of the God. They reject the existence of the God, and they say that there is no God, we have to search out meaning ourselves. These meanings what we have in the society, they are given by the school, the school and the university and the people, the parent and surrounding and the society and community and countries. So we have to search out our own meaning. तो ये किसकी बात करते हैं कि इंसान यहाँ bewilder condition में है, baffled है, confused है, and he is finding out meaning here and there in the form of the estrogans and pozos and lucky, and in the form of estrogans, in the form of the DD, the gogo, and they are just finding out meaning. So look over here what DD is saying. DD says there is a man all over for you, यानी हमारे ऊपर, यानी एक आदमी है, यानी वो बात कर रहा है बड़ी रैट्रिक। उसने कहा कि देयर इज अ मैन ऑल ओवर फॉर यू, ब्लेमिंग ऑन हिज फूड द फॉल्ट ऑफ हिज फीट। अब देखें उसने कितनी बड़ी बात की है, इसको अंडरलाइन कर लें, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। कहता है कि हमारे साथ देयर इज अ मैन ऑल ओवर फॉर यू, इंसान के साथ हमेशा एक आदमी रहता है जो कसूर उसके पाँव का होता है और वो अपने बूट को कोसता रहता है। देखिए उसने कौन सी बड़ी एक मेटाफोरिकल जिसे हम कहते हैं, और एक एलिगोरिकल, मेटाफोरिकल, एक बड़ी फिगरेटिव सी लैंग्वेज में बात की है कि इंसान हमेशा क्या करता है कि कसूर उसके अंदर होता है, फॉल्ट उसके अंदर होता है, बट ही स्टार्टेड फाइंडिंग इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, इन द पीपल, इन सराउंडिंग एंड इन पीपल अराउंड हिम। बट द थिंग इज दैट until unless he fix himself, he mend himself, he cannot fix the fault. The fault is lying inside the man, but he is finding in the society, in the friends, in the people around him, but the fault in himself. वो कहता है कि फॉल्ट इंसान के अंदर होता है, लेकिन वो तलाश दूसरों में करता है, वो दूसरों को कोसता है, वो सराउंडिंग को क्रिटिसाइज करता है, वो लोगों को बातें करता है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है डीडी व्लादिमीर, ही इज इंटेलेक्चुअल एंड वेरी फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इन द ड्रामा, ही टॉक्स
very witty language. No, he is saying that there is a fault in the man and he is finding in his boot. इंसान के अपने अंदर फॉल्ट होता है, वो अपने बूट को कोसता रहता है कि मेरा बूट ठीक नहीं है, उसका पाँव बल्कि ठीक नहीं होता, एंड इट इज़ नॉट लेटिंग हिम टू रन इन अ गुड डायरेक्शन. मैंस ओन हार्ट इज़ नॉट गुड एंड ही स्टार्टेड फाइंडिंग इन अदर, और वो दूसरों में फाइंड फॉल्ट करता फिरता है. तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है. डीडी बात कर रहा है. डीडी किससे बात कर रहा है? डीडी गोगो से बात कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि किस तरह उन्होंने वेट करना है, किस तरह घोड़ों के लिए उन्होंने तलाश करना है कि घोड़ों कहाँ पे है, और उसका वो कॉन्स्टेंटली वेट करते रहें. तो इस तरह की वो बात उसको मोटिवेट करने के लिए कर रहा है कि इंसान के अंदर अपने ही अंदर फॉल्ट होता है, बट ही इज़ फाइंडिंग विद अदर्स एंड ही डज नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू एनालाइज. और जैसे सोक्रेटिस ने कहा था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. अनएग्जामिन्ड लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग नहीं होती. लाइफ वही वर्थेबल होती है जो सेल्फ एनालाइज्ड होती है, जो सेल्फ एग्जामिन्ड होती है. एग्जामिन्ड, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, सेड बाय सोक्रेटिस. सो नो, these are the three we have to do. So let's I share another thing for you. Here is one of assignment that is lying with me, not with you. अच्छा, क्वेश्चन आता है कि डिस्कस चेरी ऑर्चर्ड एज अ नेचुरलिस्टिक प्ले. तो व्हाट इज़ द नेचुरलिस्टिक? कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जो फॉलोअर हैं नेचुरलिज्म के? प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नेचुरलिज्म कौन कौन से हैं? मैं थोड़े से कुछ लोगों का यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उनके नाम लेता हूँ कि ये लोग जो हैं नेचुरलिस्टिक मूवमेंट को फॉलो करते थे. जे रोसियो, चैम्पियन ऑफ द नेचुरलिज्म. लिख लें, नाम है जे रोसियो. असाइनमेंट जो है वो मेरे पास इधर मौजूद है, ये मैं आपको सेंड कर दूँगा. सो अदर जो फॉलोअर हैं इसके वो हैं एरिस्टोटल, उसके बाद बेकन, हॉक्सले, डार्विन, स्पेंसर, एपिक्यूरियस, टैगोर्स. ये लोग जो हैं नेचुरलिस्ट